Good morning, students of the BSc third year classes in zoology subject. Today's topic is related to the genetic recombination process in the bacteria, so called. This is the bacterial recombination. Recombination, what about to the recombination? Recombination is the process by which to the exchange of the material from to the one bacterium to another bacterium, so that first of all you know that what is the recombination process in the bacteria. Bacterial recombination is the type of genetic recombination. Bacterial is the type of genetic recombination. They are type of the genetic recombination. Genetic recombination the type of the genetic recombination in bacteria characterized by DNA transfer from one organism to another organism. Type of the genetic recombination by which the transfer of the genetic material from transfer of the DNA or the genetic material DNA from one organism to another organism. The bacterial recombination is the type of the genetic recombination in which the transfer of the DNA from one organism to another organism, or the one bacterial to another bacterial, one donor to the another recipient. So this is the kinds of the recombination processes, and these are the recombination process which three main ways. First is transformation. Second is that transduction. Third is conjugation. There are the three processes which are involving to explain the bacterial recombination. For the transformation, the uptake of exogenous DNA from the surrounding environment. The uptake of exogenous DNA from environment. For in the uptake of the exogenous DNA from the surrounding environment or the environment. For the transduction, the virus mediated transfer of the DNA between bacteria. Virus mediated transfer of DNA. Virus mediated the transfer of DNA. The transfer of DNA. Transfer of DNA between bacteria.
And finally conjugation. This is the another type of the processes, the transfer of the DNA from one bacterium to another, the transfer of DNA, the transfer of DNA, the transfer of DNA from one bacterium to another, from one bacterium to another through the contact, via cell to cell contact, via cell to cell contact, cell to cell contact. There are the three ways: transformation, transduction and the conjugation. And these are the three types of to the processes which indicates, which represents as a recombination processes, that is observed by to the different kinds of group of the persons or the scientists. So the transformation, this is the first of all the Griffith and Avery McLeod and McCarthy. After that to the transduction and the conjugation. This is the also by the different scientists. First of all, we just understand what is the meaning of to the these sentences. For the first is that for the transformation, the name is the transformation. The transformation from that, the uptake of the exogenous DNA from the surrounding environment. The DNA which are obtained, which are find that from the surrounding environment, exogenous DNA which are uptake by the surrounding DNA. In this process to make two different genetic material of the organisms, and that's to form to the recombinant DNA molecules. So that is the processes, and that is the lab based processes through the Avery, McLeod and McCarthy, which used to the bacteria and to the other materials as a tools. Go now to the transduction processes. The virus mediated the transfer of the DNA between bacteria. The phase by viruses, bacteriophage, phase of the bacteria, the virus of the bacteria, which transferred to the DNA between bacteria. In their genome, there are the genetic material which transform into the bacterial cell and which incorporated, so that to the virus mediated the transfer of through the virus, the transfer of the DNA in the bacterium. So that is the type of to the gas to the genetic transformation, genetic recombination processes. And finally through the conjugation, the transfer of the DNA from to the one bacterium to the another via to cell contact. Through the cell to cell contact, which means that to the sex pili which form to the conjugation tube or the bridge from to the one type up to the another type of the bacteria and transfer to the genetic material. So that this is the another processes. So for that to the recombination process, that is the recombination processes which are going to the exchange of the genetic material and to the in the process of the recombination, that is the unit is the recon. So
which takes to the one by one these are the processes. First is, तो हम इस वीडियोस में बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जिसमें 3 जो है प्रकार के मैकेनिज़म्स हैं। अब इस मैकेनिज़्म की बात करेंगे तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम तीनों को समझेंगे। आपने देखा कि ये इन्वायरमेंट से एक्सोजेनस डीएनए को अपटेक करके जो है रिकम्बिनेशन प्रोसेसेस के दौरान जो है रिकम्बिनेंट बना जाता है, जिसके आधार पे हम जो है ये लैब कंडीशन है। दूसरी चीज़ है कि वायरस के द्वारा, वायरस मीडिएटेड जो होता है वो जो ट्रांसफर डीएनए होता है जो फेज बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, और यहाँ पे सेल टू सेल कांटेक्ट के माध्यम से जो डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो इन तीनों को हम जो है एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये है। तो देखते हैं कि एक एक करके प्रोसेस कौन कौन से और इस प्रोसेस में क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो हम अब एक करके देखते हैं कि बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन में जो 3 प्रोसेसेस हैं उसके अंतर्गत, तो हम पहले समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेशन। हम कॉन्जुगेशन मैकेनिज़्म को पहले समझते हैं, कॉन्जुगेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज किसने की उसको देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टाटम, लीडरबर्ग एंड टाटम इन 1946। तो 1946 में लीडरबर्ग एंड टाटम ने कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस की खोज की और इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस है वो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू द बैक्टीरियल सेल बाय टू द कांटेक्ट। तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट से होने वाला जो ट्रांसफॉर्म, जो एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का स्थानांतरण, बैक्टीरियल मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो सेल के कांटेक्ट से हो, तो इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेंट मतलब कि 2 बैक्टीरिया आपस में आके किसी चैनल, किसी पाथ के माध्यम से वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करें और उससे ट्रांसफॉर्म होने वाला, उससे एक्सचेंज होने वाला जो प्रोसेस होगा वो कॉन्जुगेशन होगा। तो कॉन्जुगेशन विच सीन इनटू द एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया, दैट इज द विच गिवन बाय टू द लीडरबर्ग। तो आप समझने का प्रयास करें कि लीडरबर्ग और टाटम ने जो कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज का तरीका है, और ये तरीका जो है वो सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, वाया सेल टू सेल कांटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो सेल टू सेल कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट कैसे होगा, तो उसको हम देखते हैं। आई वॉज डिस्कस्ड इन टू द लास्ट वीडियोज़ टू द प्लाज्मिड। तो हमने प्लाज्मिड की बात की थी, अबाउट टू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल एंड विच फाउंड इनटू द बैक्टीरियल सेल। ई कोलाई में जो है, इस सभी में तो नहीं, ई कोलाई बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड जो है पाया जाता है। प्लाज्मिड ई कोलाई में पाया जाता है। तो एक बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम होता है और उसके साथ साथ में एक प्लाज्मिड होता है। तो इसीलिए बोला जाता है, और इसका कोई रोल नहीं होता इसके मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में। तो ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया। तो जो प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, अब उसके आधार पे मैंने कहा कि प्लाज्मिड क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है डीएनए के फॉर्म में, और जो है सर्कुलर डीएनए होता है, ये इसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, और ये रेप्लिकेशन ओरिजिन पाई जाती है इस पर। और ये इसके बियॉन्ड, मतलब जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके अलावा पाया जाता है। तो सब प्रकार के डीएनए में, सब प्रकार के बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता। कुछ सम ऑफ द बैक्टीरिया हैव टू द प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया प्लाज्मिड को कंटेन करता है। अब यहाँ से इसका कॉन्जुगेशन से क्या संबंध है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था देयर आर द 3 फैक्टर्स विच हैव इन द प्लाज्मिड। 3 प्रकार के फैक्टर्स पाए
जाते हैं प्लाज्मिड में। एक फैक्टर की हमने बात की थी, एक हमने एफ फैक्टर की बात की थी, एफ फैक्टर। दूसरा हमने बात किया था आर फैक्टर की, आर फैक्टर। और तीसरा हमने कॉल फैक्टर की बात की थी, जो कि तो ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं ये अलग अलग जो है बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किसी ये यफ फैक्टर प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड होता है, कॉल प्लाज्मिड, तो अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो कॉन्जुगेशन खासकर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस होता है, जहाँ से सेल टू सेल कांटेक्ट होके एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा, तो उसके लिए यहाँ पे अगर ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है जो प्लाज्मिड को कंटेन किया है, तो उसको अलग कैटेगरी दी जाती है, और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता, केवल बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो जो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि दोनों बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड को कंटेन किया है, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव को बोलते हैं, यफ फैक्टर है, यफ मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। यफ को रिप्रेजेंट किया जाता है फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में। फर्टिलिटी फैक्टर है ये, जिसके द्वारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बार बार बोलते हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्टिलिटी फैक्टर है, तो यफ फैक्टर होने के आधार पे अगर वो प्लाज्मिड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो है एक्सचेंज किसका होगा, इस प्लाज्मिड का होगा। तो अगर प्लाज्मिड को कंटेन किया है तो यफ पॉजिटिव बोलते हैं। और ये चूंकि एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल हो रहा है, तो सेल टू सेल कांटेक्ट है, और ये सेल क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ये करता है, इसलिए ये डोनर होता है, ये देता है, इसलिए डोनर हो गया, डोनर। और चूंकि यह पॉजिटिव है तो इसको मेल बोला जाता है, मेल बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, यू कैन से दैट इज द मेल बैक्टीरिया। अब एक दूसरे टाइप का जो बैक्टीरिया है, इसकी उसी कैटेगरी के अंतर्गत, जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, केवल बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को यफ माइनस बोलते हैं कैटेगरी में। और चूंकि ये इससे मटेरियल को प्राप्त करता है, तो इसलिए रेसिपिएंट बोलते हैं, रेसिपिएंट। और इसको फीमेल बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है। तो यह पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया आपको प्राप्त हुए, और इस प्रोसेसेस में कॉन्जुगेशन ट्यूब में कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस के अंतर्गत जो है आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, तो दो स्ट्रेन के बैक्टीरिया विच आर हैव टू द प्लाज्मिड एंड टू द विदाउट प्लाज्मिड, विच आर नेम टू द यफ पॉजिटिव और द डोनर और द मेल बैक्टीरिया, एंड विच आर नॉट हैव टू द प्लाज्मिड, दैट इज द यफ नेगेटिव और द रेसिपिएंट और द फीमेल बैक्टीरिया। अब क्या होगा, सेल टू सेल कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया होंगे, आप देखें इस प्रोसेसेस के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, ये प्रोसेसेस के माध्यम से ये दोनों जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, दोनों जो बैक्टीरिया होंगे, तो इस प्रोसेसेस में आपने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो एक जो है डोनर बैक्टीरिया और एक जो है रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। अब इसके अंतर्गत मैंने बोला कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंतर्गत अब कांटेक्ट होगा, इनका आपस में कांटेक्ट होगा। तो इसको हम इस प्रकार से डायग्रामेटिक रूप से दिखाते हैं आपको। देखें, ये इस प्रकार से कांटेक्ट के माध्यम से होने वाला एक्सचेंज, ये देखें ऐसे हम बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रकार का। तो अब ये एक जो इसका बैक्टीरियल डीएनए हो गया और इसका प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, इसमें एक डीएनए हो गया, तो यफ पॉजिटिव है टाइप का और ये यफ नेगेटिव है स्ट्रेन का। अब इसमें क्या है, ये कॉन्जुगेशन ब्रिज या ट्यूब बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है। ये ट्यूब है जिसके माध्यम से जो
प्लाज्मिड का एक्सचेंज होगा इसके अंतर्गत, ये होगा, या ब्रिज भी बोलते हैं। अब ये ब्रिज किसके आधार पे बनता है? ये कल मैंने बताया था आपको कि जो फेम्ब्री आर द सेक्स पिली होती है, थ्रू आउट द पूरे बॉडी में जो स्क्रीचिया कोलाई के पूरे बॉडी पे फेम्ब्री या पिली पाई जाती है, पिलीन प्रोटीन के माध्यम से बनती है, तो उसका रोल क्या होता है? सेक्स पिली बोला जाता है उसको, सेक्स पिली। तो इसका रोल है कि ये इस ट्यूब का फॉर्मेशन करे। इस ट्यूब का जो फॉर्मेशन होगा इसी पिली के आधार पर, आपको ध्यान होगा कि इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है और इस पूरे बॉडी में ऐसे इस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत ये जो कुछ स्मॉल टाइप की जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं पाई जाती है, वो सेक्स पिली का आते हैं। उसका काम है, दिस इज द वर्क ऑफ द सेक्स पिली टू द फॉर्म टू द ट्यूब्स, दिस ट्यूब इज कॉल्ड टू द कॉन्जुगेशन, सो दैट्स वाई इज कॉल्ड टू द कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस। तो अब आपने देख लिया कि ये कहाँ से बना है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। अब होगा क्या? तो जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन प्रोसेस में जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट होके यहाँ से ये जो देखिए जा रहा है, और ये इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो जैसे ही ये इसमें पहुँचेगा तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये F- से F+ हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसमें भी जेनेटिक एक जो है प्लाज्मिड आ जाएगा, कैसे? रेप्लिकेशन प्रोसेसेस के माध्यम से, और जो F- था वो F+ में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो जो रेसिपिएंट था वो मेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो डोनर था, जो रेसिपिएंट था वो डोनर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से ये इसने प्लाज्मिड को प्राप्त कर लिया। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक न्यू बैक्टीरियम का फॉर्मेशन हो गया, न्यू बैक्टीरियम का फॉर्मेशन इसके अंतर्गत हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर द डीएनए, जिसको आप डीएनए बोलते हैं। डीएनए का क्या हुआ? जो है एक्सचेंज हुआ। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे आया आफ्टर द रेप्लिकेशन एंड थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो सेल टू सेल कांटेक्ट वाया सेल टू सेल। अब सेल से सेल का कांटेक्ट हुआ कॉन्जुगेशन ट्यूब या ब्रिज के माध्यम से, और सेक्स पिली ने इसको फॉर्म किया, और उसके आधार पे जो F+ था F- में कन्वर्ट हो गया, सॉरी F+ था F- था, वो F+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये न्यू बैक्टीरियम में कन्वर्ट हुआ। तो ये प्रोसेसेस जो होता है वो दो अलग अलग बैक्टीरिया के अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सचेंज के माध्यम से होता है, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि लेडरबर्ग और टांटम ने इसकी खोज की थी। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि F फैक्टर के पाए जाने के आधार पे R फैक्टर रेजिस्टेंस होता है, कॉल फैक्टर कॉलिसिन फैक्टर रखता है। अलग अलग प्लाज्मिड का एक ग्रुप है या फिर कैपेबिलिटी है जो कि वहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे F फैक्टर काम कर रहा है, जिसके आधार पे इसको F- से F+ में कन्वर्ट कर दे रहा है और एक नए बैक्टीरिया को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस आधार पे हमने कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस के माध्यम से ये देखा कि यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ से ये रिप्लिकेट करके यहाँ पे जा रहा है। तो ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया और ये अलग प्रकार के बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से ये बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि ये रिकॉम्बिनेट बन गया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस ये होता है। अब इसके आगे हम चलेंगे दूसरे प्रोसेसेस पे जिसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। और ट्रांसडक्शन कैसे होगा? वो वायरस मीडिएटेड होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया के बीच में वो उसका जो है ट्रांसमिशन होता है। और वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम प्रोसेसेस को आगे बढ़ाते हैं और ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है। तो ट्रांसडक्शन, तो हम बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत दूसरे टाइप के रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को देखते हैं जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू द फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल बाय द वेक्टर। तो यहाँ पर वायरल वेक्टर या फिर वायरस के द्वारा जो है
जो जीन एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसडक्शन क्या हुआ? ट्रांसडक्शन प्रोसेस, बाय द ट्रांसडक्शन प्रोसेस टू द फॉरेन डीएनए विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल by the virus or the viral cloning vector virus। तो यहाँ पर वायरस के मदद से जो है जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज किया जा रहा है सेल में, तो उसी को फॉरेन, तो वो वायरस का डीएनए होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। देयर आर नो सीन टू द सेल टू सेल कांटेक्ट और द एनी काइंड ऑफ द कनेक्शन और द कांटेक्ट। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं दिखता। यहाँ पे जो है जो जीन होता है या डीएनए होता है उसका जो एक्सचेंज होता है वो वायरस के माध्यम से होता है और बैक्टीरिया में होता है। तो एस्क्रिचिया कोलाई यहाँ पे फेज वायरसेस होते हैं और फेज वायरसेस के माध्यम से यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो ट्रांसडक्शन जो है कॉमन टूल्स है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए, और यहाँ पे ये होता है कि कई प्रोसेसेस होते हैं। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेसेस जो होता है फेज बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो उसकी मदद से होता है। और इस जो फेज वायरस होता है ये जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज बोला गया तो फेज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस ऑफ द बैक्टीरिया कहा जाता है इसको। और ये क्या करता है, एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया को पर इन्फेक्शन करता है, मतलब वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करता है, ट्रांसड्यूस करता है वहाँ पे, और इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करता है, और इंट्रोड्यूस करा के ये दूसरे टाइप के बैक्टीरियम में को बनाने का प्रयास होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो अब इसकी खोज जो है वो यहाँ पे जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की है। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की है। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की है, और ये जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इसकी खोज जो है 1952 ईस्वी में की है। 1952 the Zinder and Ledderberg which are discovered to the process of the transduction by which the foreign DNA which are introduced into the cell via to the virus, so that whose the virus is the bacteriophage virus, phase of the bacteria which are attached to the surface of to the bacterial cell, and that is the introduces their genetic material and incorporated with the DNA up to the bacteria, so that to the which introduced to the bacteriophage, and that's to bacteriophage which are goes into the another bacteria, so that is the ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। तो इस प्रकार से ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म को हम देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। कुछ प्रोसेसेस हैं इसमें, जैसे तो सब कुछ प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के मदद से जो है बैक्टीरिया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे बैक्टीरिया दो प्रकार के, यहाँ पे हम आपको बता दें, लाइटिक साइकिल एंड दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। ये दो प्रकार के साइकिल को परफॉर्म करता है। लाइटिक साइकिल का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरियल सेल डेड हो जाता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेड। जबकि ये क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो उसके साथ में वायरस का जीनोम जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें वो इनकॉर्पोरेट होके आता है। तो दो प्रकार के हैं, लाइटिक जो इसमें बैक्टीरियल सेल को या फिर वाल को जो है डिसॉल्व करके जो बैक्टीरियोफेज होते हैं आफ्टर द कमांडिंग ऑफ टू द मेटाबॉलिक प्रोटीन्स, जो मेटाबॉलिक प्रोटीन के लिए जो प्रोटीन होते हैं उसको कमांड करके अपने लिए प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि वायरसेस की जो प्रवृत्ति होती है, वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस से वो अपने डीएनए या आरएनए जो होता है, तो ये बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है वो उसको बनाता है। और जबकि प्रोटीन जो कैप्सिड या कैप्सोमियर जो बोलते हैं आप, वो जो है वो जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती
होती है बैक्टीरियल सेल की, उसको जो है अडॉप्ट करके करता है। तो इस प्रकार से ट्रांसडक्शन प्रोसेसेस में आइदर लाइटिक एंड लाइसोजेनिक प्रोसेसेस के माध्यम से करता है। और इसमें मैंने कहा कि जो कई प्रोसेसेस होते हैं जिसके आधार पे, तो कुछ प्रोसेसेस को देखते हैं हम। जैसे प्रोसेस क्या है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन है। फिर एडजॉर्प्शन के अंतर्गत हम आपको बता दें, अब एडजॉर्प्शन में क्या होगा, ये जो फेज वायरस होगा वो पेनिट्रेशन की प्रक्रिया करेगा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद जो है यहाँ पे एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन होगा फिर, और इनकॉर्पोरेट करके जो है यहाँ पर सिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा, सिंथेसिस होगा, फिर मैचुरेशन होगा, मैचुरेशन ऑफ द फेज, फिर इसके बाद वो वहाँ पे जो है लाइसिस की प्रक्रिया होगी, और फिर बाद में लिबरेशन हो जाएगा। तो कुछ ये यूनिक प्रोसेसेस हैं जो कि ट्रांसडक्शन के अंतर्गत होंगे। तो हम कुछ लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक करके डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू द बैक्टीरियोफेज, द एग्जाम्पल क्या है, एस्क्रिचिया कोलाई को लिया गया है। एस्क्रिचिया ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसी पे सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई है, और ये इसका अपना जीनोम है। तो बैक्टीरियोफेज जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, देखिए ऐसे ये आके यहाँ पे इसके सरफेस पे कांटेक्ट करता है, और कांटेक्ट करेगा तो हम आपको बता दें, इसका हेड होता है, टेल होता है, फाइबर्स होती हैं, टेल प्लेट होता है, कॉलर रीजन होता है, और इसके अंतर्गत ये इसका अपना डीएनए होता है। तो ये क्या करता है, ये आके, चूंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्लेन दैट टू द दिस इज द बैक्टीरियोफेज, द फेज ऑफ द बैक्टीरिया, सो दैट टू द दिस इज द इन्फेक्टेड टू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन या रोग फैलाने वाला वायरस है, तो बैक्टीरिया को टारगेट करता है। और उस जिसके अंतर्गत जो पहला है एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन में ये सेल सरफेस पे आके यहाँ पे इसको ये अटैच होने का प्रयास होगा इसका, तो अटैच होता है, और अपनी जो टेल्स होती हैं उसकी मदद से वहाँ पे रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं। तो रिसेप्टर साइट्स की मदद से जाके उसी जगह पे चिपकती हैं जहाँ पे इसको जुड़ना होगा, और उसके बाद एंजाइमेटिक एक्शन के माध्यम से इसको डिसॉल्व करके अपने जो जीनोम है, जिसको आप डीएनए बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराएगा। तो पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। एडजॉर्प्शन के बाद इसमें पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होगी, और पेनिट्रेट करके ये जो डीएनए होता है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की मदद से इसको डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करके ये पिनिंग जो, क्योंकि ये जो फेज होता है वो ऐसे ये फेज जो है ये पाथ बनाएगा, और यहाँ से इंट्रोडक्शन करेगा यहाँ पे इसके अंतर्गत। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ से इस अंदर आ जाता है। अब चूंकि ये क्या है, अब इसके बाद इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया होगी, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट होगा। ध्यान दीजिए, अब ये जीनोम जो है अब बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जुड़ने का प्रयास करेगा, मतलब कमांड करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके साथ में तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू द बैक्टीरियल एंड द वायरल जीनोम विच आर डिसइंटीग्रेटेड एंड देन इनकॉर्पोरेटेड। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट मतलब ये देखिए इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और ये वायरस का जो जीनोम है ये भी। तो अब ये आपस में आके जुड़ेंगे, तो जब जुड़ते हैं तो उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट कर लेंगी, और इनकॉर्पोरेट करके आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम ये इस एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको, ये फेज का
डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। अब जैसे ही ये अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ तो पूरा का पूरा कमांड विच आर कमांडिंग टू द ऑल द मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर दैट टू द प्रोडक्शन ऑफ टू द प्रोटीन, तो प्रोटीन जो पूरी मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको कमांड करता है और रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू करेगा। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस से क्या होगा, ये सिंथेसिस करेगा, क्या फेज वायरस की सिंथेसिस करने लगेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो पार्ट्स होंगे फेज के, जैसा मैंने बताया फेज जो होता है वो मैंने कहा कि इसमें हेड रीजन है, कॉलर रीजन है, टेल्स है, फाइबर्स है, तो इन सारी चीज़ें की सिंथेसिस होने लगेगी। देखिए हम थोड़ा सा बनाते हैं छोटा छोटा, यहाँ पे ये देखिए कहीं पे कॉलर बन रहा है, कहीं पे इसका टेल फाइबर बना है, 6 टेल फाइबर्स होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ध्यान दीजिए आप, तो सिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हम उसको दिखा रहे हैं। इस तरीके से सिंथेसिस होने लगता है बैक्टीरियल सेल के विद इन अ बैक्टीरियल सेल, दैट इज द सिंथेसिस अप टू द न्यू फेज वायरसेस, सो दैट आफ्टर दैट अब ये असेंबलिंग होगी। इसके बाद इस अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में असेंबलीज हो जाएगा, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे और एक फेज का निर्माण करेंगे। देखिए असेंबलिंग होके मैच्योर्ड हो जाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से, इस तरीके से वो असेंबल्ड हो जाएंगे। ये इस तरीके से, और मैच्योरेशन वही, तो असेंबलिंग करके अपने मैच्योर्ड हो गए। और इसके बाद ये जो फेज होता है, फेज वायरस जो होता है वो क्या करेगा, एंजाइम का सिक्रीशन करता है और ये इसकी जो दीवार होती है बैक्टीरियल सेल की उसको ब्रस्ट कर देता है और एक पाथ बना देता है। देखिए हमने बना दिया, तो यहाँ पे पाथ बनाया मैंने, तो इस तरीके से ये थोड़ा देखें, इस तरीके से एक पाथ बन गया। अब यहाँ पे कुछ वायरसेस, फेज वायरसेस को हम इंडिकेट कर रहे हैं, फेज वायरसेस को, और एक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लिबरेट हो रहा है। तो लिबरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और कि यहाँ से ब्रस्ट करने आफ्टर द यूजिंग आफ्टर द एंजाइम, दैट इज द फेज वायरसेस विच आर लिबरेटेड आफ्टर द डिजॉल्वेशन ऑफ टू द बैक्टीरियल सेल वाल एंड वाल्स। सो दिस इज, तो यहाँ पे देखिए लाइसिस की प्रक्रिया हुई और लाइसिस की प्रक्रिया हमेशा एंजाइमेटिक एक्शन से होती है और उसके बाद लिबरेशन होगा, लिबरेट कर जाएगी और ये जाके किसी एक दूसरे जो बैक्टीरियम, न्यू बैक्टीरियम होंगे, ये जाके उस पर अटैक करेगा फिर से। तो इस प्रकार का जो ये जो प्रोसेसेस है ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब यहाँ से ये जो देखिए इसका ये वायरस, ये जीनोम था, ये इंट्रोड्यूस किया, इसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ और जाके फिर से न्यू बैक्टीरियम को करेगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल में जब इनकॉर्पोरेट होकर न्यू बैक्टीरिया जो वायरस के साथ में, वायरल जीनोम के साथ में होगा, तो अपने जो पेरेंट सेल, पेरेंट बैक्टीरिया होगा उससे पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, या यूं कहे विच फॉर्म टू द न्यू बैक्टीरियम, विच प्रोड्यूसेस टू द न्यू बैक्टीरियम अलॉन्ग विद द फॉरेन डीएनए एंड टू द बैक्टीरियल डीएनए, so that on the behalf that is the process of to the transduction। अब ये प्रोसेस है, तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे लाइटिक साइकिल है, लाइसोजेनिक। देखिए लाइटिक साइकिल ये हो गई। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, बस इसका उससे इनकॉर्पोरेशन होता है, जाके जुड़ेगी, उसमें उसका पार्ट होगा और ये हमेशा कॉन्स्ट्रिक्शन करते हुए, इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होते हुए अलग हो जाएगी और इसमें वायरल जीनोम पाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसडक्शन जो मैकेनिज्म है ये भी 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होने का मतलब ये होता है कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंतर्गत जो है ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होते हैं, जिसमें जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो पाया जाता है और रैंडम पीस ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए जो है वो पैक्ड होती है इनटू फेज में रैंडमली, मतलब
पूरी तरीके से। और जबकि जो स्पेशलाइज्ड होती है, जो स्पेशल होती है, वो होती है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। अब देखिए, जैसे अगर बैक्टीरियल जीनोम के साथ में छोटा सा फेज डीएनए जुड़ा है तो इसको प्रोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेज बोलते हैं। और ये प्रोफेज जो होता है ये स्पेशलाइज्ड टाइप का जो ट्रांसडक्शन होता है उसमें पाया जाता है। जबकि जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन ये इस प्रकार से होता है जो रैंडमली यहाँ से आके जुड़ जाता है। तो दो प्रकार के ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म के अंतर्गत लाइटिक एंड लाइसोजेनिक प्रोसेसेस के माध्यम से ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म को दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड अबाउट टू द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। इफ द viruses which infected and introduced their genetic material via to the penetration and then to the disintegration and incorporation of the DNA molecules formed to the synthesis after the phage viruses after the commanding up to the metabolic machinery, so that to the maturation up to the assembling up to the assembling of phage viruses, and then to the liberated to the enzyme that is dissolved to the wall up to bacterial cell and liberate and then is go to the another on the surface of the bacteria which infected to and introduce their material, and that is the incorporated. If the incorporation in which up to the randomly is called to the generalized, and to the which only attached to the some of the parts up to the DNA is called to the prophase is the specialized। तो इस प्रकार से दो प्रकार जो है मैकेनिज़्म होता है, और दो मैकेनिज़्म के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये पाया जाता है। तो उसके अंतर्गत आप देखें कि स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो आपने देखा, डायग्रामेटिक रूप से समझने का प्रयास किया और ये समझा कि कॉन्जुगेशन और आफ्टर दैट क्या कहते हैं ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो अब एक प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेबोरेटरी कंडीशन में, लैब कंडीशन में होती है, और वो इनसे थोड़ा सा अलग होती है। और वहाँ पे एक्सोजीनस जो डीएनए होता है वो जो है वहाँ पे प्राप्त किया जाता है, और उसके आधार पे वहाँ पे मैकेनिज्म किया जाता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार। तो देखिए, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ से, वो इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेशन हो गया और जाके तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो सबके साथ में जुड़ने के बाद ये क्या बनाया? रिकम्बिनेंट बनाया। तो एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाया टू द या मीडिएटेड टू द वायरसेस के माध्यम से हुआ। तो ये दिस इज द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। एंड we go now to the next processes. That is the next process is the transformation mechanism. In the transformation, that is the Griffith, the scientist Griffith, which had explained, and after that to the in detail every MacLeod and McCarthy which are working as in the laboratory conditions, so that this topic which explain will next videos. Thank you.